السلام علیکم ناظرین، پروگرام سندھ کی آواز کے ساتھ میں ہوں زہیب زرداری۔ اور ناظرین، آج ہم موجود ہیں پورٹ قاسم میں، اور پورٹ قاسم کی جہاں پر یہ میں موجود ہوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گھر ہیں وہ مسمار کیے گئے ہیں، اور یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ یہاں پر جو کچے مکانات تھے ان کو جلایا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ محمد خان گبول گوٹ تھا، اور یہ تقریباً کوئی 22 ایکڑ زمین ہے یہ پورٹ قاسم کے ساتھ۔ تو اس میں جو یہاں کے علاقہ مکین ہیں، وہ جو گوٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا موقف ہے کہ یہ ان کی آبا و اجداد کی یہ زمین ہے، اور اس زمین پر تنازع پورٹ قاسم اور ان دیہاتوں کے درمیان کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بینظیر بھٹو کے دور میں پورٹ قاسم اور گورنمنٹ کے بیچ میں اور ان دیہاتوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پورٹ قاسم ان کو یہاں سے اٹھائے گی، ان کو جو بھی یہاں سے نقل مکانی کریں گے، ہر ایک خاندان کو 1 لاکھ روپیہ پورٹ قاسم ادا کرے گا، جبکہ ان کو دوسری زمین دی جائے گی جہاں پر ان کے گھر بنائے جائیں گے، اور اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ ان کو گھر بنا کر دے گی۔ یہ طے ہوا تھا کہ پورٹ قاسم 1 لاکھ روپیہ فی خاندان اور ایک پلاٹ جو ہے وہ دے گا، اور جبکہ اس پر تعمیرات سندھ حکومت نے کرانی، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ 3 سے 4 مرتبہ پہلے بھی پورٹ قاسم اتھارٹی ان دیہاتوں کو یہاں سے نقل مکانی کرانے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر یہ واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ یہ جو لینڈ ہے یہ ان کی ہے، اس لیے انہوں نے یہ قبضہ تھا اور انہوں نے قبضہ ختم کرایا، جبکہ یہ جو 2 روز قبل کارروائی ہوئی پورٹ قاسم اتھارٹی نے پھر پولیس کے ساتھ مل کر، جس میں ملیر پولیس نے کی بڑی تعداد تھی، جنہوں نے ان لوگوں پر تشدد بھی کیا، یہاں پر کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، پھر ان کے بعد میں ان کو رہا کیا گیا اور ان کے گھر جلائے گئے، اور یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر دھواں اٹھ رہا ہے۔ ہم اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پورٹ قاسم اتھارٹی کی جانب سے جو یہ گاؤں مسمار کیا گیا ہے اس پر پروگرام کریں گے۔ ہم ان متاثرین جو ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے، ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم آج کے پروگرام میں پورٹ قاسم اتھارٹی کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام پورٹ قاسم کی جانب سے محمد خان گبول گوٹ کو مسمار کرنے پر ہے۔ پورٹ قاسم انتظامیہ نامنظور، پورٹ قاسم انتظامیہ نامنظور، پورٹ قاسم انتظامیہ نامنظور۔ جی، ہمارے ساتھ یہ محمد خان گبول گوٹ کے مکین موجود ہیں۔ ان کو پورٹ قاسم اتھارٹی نے پولیس کے ساتھ مل کر ان کے گاؤں کو مسمار کیا گیا، ان کے گھروں کو گرایا گیا اور ان کو بے دخل کیا گیا۔ ان پہ بات کرتے ہیں ان سے۔ بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے، کب سے آپ یہاں پر بیٹھے، کتنا پرانا قدیمی گوٹ ہے آپ کا، اور پورٹ قاسم اتھارٹی نے کیوں گرایا ہے؟ 1971 سے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی تک جو ہے تو ہمارے ساتھ اور کوئی سارا ناجائزی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ میرے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے، اور ہم جو غریب مظلوم بندے، ہمارے بچوں کو بھی ابھی بے گھر کر دیا ہے اسی نے۔ ابھی ہم کہاں پہ ابھی کہاں جاؤں ابھی؟ کتنے گھر تھے آپ کے گاؤں میں؟ ہمارے گھر 100 گھر تھے ہمارے بندے، آنسو گیس پھینکا ہوا ہے اسی نے، تشدد کی ہوئی ہے بچوں کے اوپر، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ اسی نے ناجائزی کر کے رکھے ہوئے، قاسم بورڈ کے افسروں سے مل کر۔ وہ کیا کہہ رہی ہے پولیس، کیا کہہ رہی ہے، یا پورٹ قاسم والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے؟ ہاں، وہ بول رہا ہے تو یہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین ہے۔ ہم نے بولا یہ ہمارا قدیمی گوٹ ہے، آج کل کا نہیں ہے، 1974 سے ہمارا گوٹ ہے یہ۔ تو آپ کے پاس کوئی وہ حقوق نہیں ہے، کوئی دستاویز، کوئی سند کوئی نہیں ہے حکومت کی طرف سے؟ سب کچھ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ایک تو نہیں ہے، سب کچھ پڑی ہوئی ہے، ڈاکومنٹ سارے میرے پاس پڑے ہوئے، اس کو وہ بھی پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ کیوں نہیں مان رہے، کیا وجہ ہے؟ وہ جو ملی بھگت ہے ساری اس کی، ہم کیا کر سکتا ہوں؟ پورٹ قاسم اور پولیس کی ملی بھگت؟ ہاں، اس کی اعتماد ہے، وہ ساری ملی بھگت کر کے وہ بولتا ہے اس کو بے گھر کر دو بس، پھر ہم کہاں جاؤں ابھی بتاؤ؟ تو ابھی پہلی بار آپ کے یہ گھر گرائے گئے، یا سے پہلے بھی کیا ہے؟ پہلے بھی 4-5 دفعے ہمارے پاس ایسے آیا ہوا ہے، نہیں کوئی نوٹس دیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں حکومت کے طرف سے ہمارے کو ملا ہوا ہے، ایسے ہی آ کر بس تشدد کر کے ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو آپ کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا؟ گرفتار ہمارے کو ایک ہی کو 2-4-5 کو پہلے کیا تھا، مگر پھر بھی اس کو چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی رلا کر تھانے پہ بھی ہمارے کو بند نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے؟ ہم یہ مطالبہ کرتا ہوں تو ہمارے کو اتنا اپنا مطالب جگہ نہیں ملی ہو جائے، جو ہم بچوں کو لے کر ادھر ہی
मतलब आप चाहते हैं कि ये ज़मीन आप खाली कर देंगे अगर आपको मुतबादिल घर दिए जाते हैं, मुतबादिल प्लाट? हमारे को उधर जगह दे तो हम उधर चला जाऊंगा। 4 दीवारें लगा कर दे दे, उसमें पानी और बिजली और गैस भी होना चाहिए मेरे लिए। एक देहाती मौजूद है, ये आप देख रहे हैं कि खून में लथपथ है और इसके बाजू में भी फ्रैक्चर है। इसको इनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने जब इनके घर मसमार किए, इनका गाँव गिराने आए, तो उस तशद्दुद में ये ज़ख्मी हुआ है। इनसे पूछे तो किसने आप पर इतना ये बेईमाना तशद्दुद किया? ये साईं एक पोर्ट कासिम में एक पुलिस है, ये जो हमारे ऊपर आई है, ये जो अचानक हमारे पर हमला किया गया और हमारे बच्चों को मारा पीटा और लेडीज़ को मारा पीटा है और हमारे घर मर सारे तबाह कर दिए गए और हम तो सारे बेघर हो गए। भी अभी हमारे पास इतनी जगह नहीं है जो हम कहाँ जाएं। हम पुराने कदीमी गोट से के बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो है ना, हमारे को ये अचानक आके नाजायज़ी की है हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ। हम भाई, ये हमारा तो पुराना गोठ है, यहाँ पे पुराना कदीमी गोठ है। हम तो पुराने स्टील मिल भी नहीं था, इधर पोर्ट कासिम भी नहीं था उस टाइम के। हम इधर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जाओ, बस जाओ। कैसे जाएं? हमारे को हमारा हक दियो तो हम जाएं, ऐसे हम कैसे जाएंगे? वो आपके और पोर्ट कासिम के बीच में ये तय हुआ था कि वो आपको मुतबादिल जगह भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, फिर आप दूसरी जगह, तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ये कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि बस जाओ, खाली करो। खाली कैसे करें? ये तो हमारा पुराना गोठ है। बोलते हैं नहीं, बस जाओ। ये हमारे से अभी भी ज़बरदस्ती किया है, खाली करा के हमारे को मार पीट के। कोई काम पे चला गया था, बंदा कोई नहीं था। हम जो 10-12 बंदे थे, हमारे को आंसू गैस पैसे का हमारे ऊपर, हमको जो है ना तशद्दुद किया, हमारे को जो है ना मार पीट के लेके। तो पुलिस के इन तशद्दुद में आपके अलावा बाकी और कितने लोग जख्मी हुए? और 5-6 और भी आए और लेडीज़ हमारी भी आए, 20-25 लेडीज़ भी है हमारी, जो उनको भी जो है ना बेदर्दी से मारा गया है। सब कुछ ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है पोर्ट कासिम और पुलिस ने हमारे साथ ये सब। पोर्ट कासिम इंजामिया ना मंजूर, पोर्ट कासिम इंजामिया ना मंजूर, पोर्ट कासिम इंजामिया ना मंजूर। जी, इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा रऊफ़ गफूर साहब मौजूद हैं। इनसे इस गुट के हवाले से मालूमात लेते हैं। साहब, क्या सबब क्या है कि देहातों को इतना इस कदर तशद्दुद किया गया? पुलिस और पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने मिलकर गांव पूरा मसमार कर दिया। ये जो है मसला पोर्ट कासिम का, सीधी सीधी बदमाशी है पोर्ट कासिम की। और ये अभी से लोग नहीं बैठे हुए हैं। जब तक यहाँ जो हम यहाँ के लोग जो हैं, गबोल फैमिली 700 साल से पुरानी है, कराची में आबाद है। और आप तारीख उठा के देख लो, कराची के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मींदार हम गबोल और जोखियो खासकली और अल्लाह ने की दे, यहाँ की जितनी दीगर कौमें हैं रहती हैं पुरानी, वो हैं। ये पोर्ट कासिम का मसला, ये यहाँ ही बचपन इनकी यहाँ गुजरी, इनके अब्बा और दादाओं की जहाँ पैदाशें हुई हैं। और उसके बाद इनके गांव के ऊपर 2-3 दफ़ा चढ़ाई की है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं अपने सीनियर मलीर के जितने कायदीन थे उनको मैंने बताया और उनके ऊपर मैंने शफकत का हाथ भी रखा था। देखो, जैसे पोर्ट कासिम में 80 के 81 में 27 गोट आते हैं, जो इनके तरफ से जो हमारे गोट शिफ्टिंग हुई गई थी 71 के अंदर, जो पोर्ट कासिम स्टील मिल बन रहा था, भुट्टो साहब ने हमें यहाँ शिफ्ट किए थे। कुछ गोटों को मुआवजे मिले गए थे, कुछ गोट रह गए थे। जैसे इसमें मोहम्मद खान गबोल गोट जो भी है, वो भी पुराना गोट है। उसकी वजह यह है, इन बेचारों को ऊपर हाय दिन तशद्दुद किया जाता था। इन्होंने यही बोला, भाई आपको ज़मीन चाहिए आप ले लो, हमें ज़मीन से गर्ज नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए राइश रहने के लिए जगह नहीं है। हम यहाँ से जब उठेंगे तो जाएंगे कहाँ? कौन हमें बिठाएगा? ज़ाहिर है आप वफाक के पोर्ट कासिम के या ज़मीन लेने में या किसी शिफ्ट करने में, ख़रीद के देने में कोई उसका कुछ ख़जाने से कमी नहीं हो सकती। ये सीधी सीधी बदमाशी की गई है अभी इनके ऊपर। और मुझे दुख सिर्फ इस बात का आता है, जैसे कि हमारे सोर्स के लोग हैं, पुलिस के, इंक्रीमेंट है, ये पोर्ट कासिम की इंतज़ामिया थी, ठीक है, मुझे उस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है, ये पुराने लोग बैठे हुए हैं, सिंधी लोग हैं और सिंध के वारिस हैं और सिंध के धनी हैं। इनके ऊपर प्राइवेट बंदे बुला के 500 बंदे जो है, दीगर कौमों के पठान जो है, उनके ऊपर चढ़ाई की गई थी, उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, औरतों को घसीटा गया, बंदों को मारा गया। यार कोई ज़ाती दुश्मनी इनकी नहीं थी, इनके साथ इतनी ज़्यादती की गई है और इतना जुल्म किया गया है। यार ये भी सिंधी हैं,
ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान पे हक रखते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे दी, पाकिस्तान बनने के लिए पोर्ट कासिम स्टील मिल के लिए अपने बेघर कर दिए, अपने घरों को बेघर कर दिए, इतने इन्होंने कुर्बानियाँ दी। आज इन कुर्बानियों को इनको ये सिला मिल रहा है। मैं खुदारा मैं जो है आर्मी चीफ से अपील करता हूँ, खुदारा इमरान खान से भी करता हूँ, मैं अपने बिलावल भुट्टो सीएम साहब से भी अपील करता हूँ, तो खुदारा इन 10 दायों पे दिया जाए, इनके ऊपर इनकी आवाज़ उठी जाए, इनको भाई जगह दी जाए, इनके हक दिए जाए। इन बेचारों के ना कोई कपड़े छोड़े गए हैं, ना कोई सोना वहाँ उनका सारा लूटा गया है, वहाँ उनकी माल मवेशियाँ काट के खा रहे हैं, ना माल मवेशियाँ छोड़ रहे हैं। इतना जुल्म तो नहीं होता है जितना इन्होंने जुल्म किया है। मैं बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूँ, मैं शेम करना चाहता हूँ पोर्ट कासिम को, और इतनी पोर्ट कासिम के वफाक का इदारा होके और इस तरीके की जो हरकत की है, ये बहुत नाक के। कैसे मसला ये फिर हल होगा कि इनको तो उठा दिया वहाँ से, तो अब आपकी पार्टी है, सिंध में तो हुकूमत है आपकी, तो क्या आप समझते हैं कि आप अपनी पार्टी से बात करेंगे कि ये सिंध असम्बली या नेशनल असम्बली में इस मामले को उठाया जाए कि ये यहाँ पर असल वारिस हैं, उनको इस तरह बेदर्दी से और यूँ उन पर तशद्दुद करके उनके घर खाली कराए गए? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मलीर के जो हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ राब्ते हैं। कल साजिद साहब ने बड़ा स्टैंड उठाया, नोटिस उठाया, इनके ऊपर खुदारा इन्हीं के ऊपर जो है ना दहशतगर्दी के केस लगे गए, और वो दहशतगर्दी के केस हमारे SSP के एतमाद ने उसने हमें अच्छी तरह रिस्पॉन्स दी, और इंशाल्लाह CM उसमें भी इसकी बात होगी, असेंबली में भी बात होगी, इंशाल्लाह वसी करेंगे इनका एहतजाज, और इंशाल्लाह इनका हक के लिए। और हम जितने जो लोग हैं, यहाँ की जितनी बरादरियाँ हैं, सब इनके साथ मजलूम के साथ है, और इंशाल्लाह इनका हक हम इनको ज़रूर दिला के रहेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ मलीर के सियासी समाजी शख्सियत साईं खुदानी नौशाद साहब मौजूद हैं। इनसे इस सारे मामले की हकीकत भी जानते हैं, और पोर्ट कासिम और जो इन देहातों के बीच इन गाँव की लैंड का जो मामला है उसका भी पस मंज़र जानते हैं। शाह साहब, पहले बताएं कि ये मामला है क्या पस मंज़र है इसका, कि ये गाँव वाले बता रहे हैं कि 3-4 मरतबा पहले भी पोर्ट कासिम इंतज़ामिया इनको वहाँ से उठा चुकी है, तो मामला की बैकग्राउंड क्या है? असल मसला ये कि ये गोठ जो है पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने 1974 में तमाम इन गांव वालों की ज़मीन और जितने भी गोठ थे इस एरिया में उनको एक्वायर किया था गवर्नमेंट सिंध से। तो उसमें तय ये हुआ था कि इन तमाम गोठों को मुआवजा दिया जाएगा, और उन तमाम गोठों को जो है ना मुतबादल सेटलमेंट उनकी की जाएगी, उनको ज़मीन दी जाएगी। लेकिन पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने उस बात पे अमल नहीं किया। उसने हमेशा ज़बरदस्ती गोठों को बेदखल करके इंडस्ट्री वालों को ज़मीन दी और उस पर उनको आबाद किया, लेकिन उनको न मुआवजा मिला न कुछ मिला। फिर ये मसला जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म हुई दूसरी मरतबा, उसी में उनके पास ये मसला जब गया तो उसने फिर कमीशन बनाई थी, कांगो कमीशन के नाम से, वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन। उसने फ़ैसला किया था कि तमाम जो मुतासरीन हैं उनको 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, और तमाम लोगों को प्लाट दिए जाएंगे, और सिंध गवर्नमेंट उस पर हाउस प्लानिंग के तहत उनको आबाद करेगी। ये मसाइल थे, और हर ख़ानदान को 1 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाएगा घरों का। लेकिन उस पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने अमल नहीं किया, न रेवेन्यू वालों ने उस पर अमल करवाया, दोनों उसमें मुजरम हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता वो गोठ खाली कराते गए, तो उसी कमीशन के फैसले के तहत 50 एकड़ ज़मीन जो 27 गोठ थे पिपरी के, उसको मिली गग्गर फाटे के करीब जहाँ पर वो आबाद है। एक गोठ इसी एरिया में जो था, जो जिनको वहाँ ज़मीन नहीं मिली थी, वसंत खान गोठ, उसको हाई कोर्ट के फैसले के तहत 4 एकड़ ज़मीन पोर्ट कासिम कॉलोनी के करीब मिली। बाकी 3 गोठ अभी भी ऐसे हैं जिनको न ज़मीन मिली, न उनको प्लाट मिला, न उनके साथ कोई बात हुई। उनको ज़बरदस्त बेदखल करने के लिए 2 गोठों को तो कर दिया, बाकी एक ही गोठ था सरज़मीन पे, मोहम्मद खान गोठ, जिसके ऊपर ये हमला करते रहे। आखिर इन्होंने 13 तारीख को जाके पूरे गोठ को कब्ज़ा करके मसमार करके लोगों को बेदखल कर दिया। असल में ये वही लोग हैं जिनकी ज़मीन पोर्ट कासिम अथॉरिटी को दी गई है, गाँव भी उनके हवाले, कब्रिस्तान भी उनके हवाले। लेकिन उस मसले को जो इस हवाले से मैं पोर्ट कासिम के ख़िलाफ़ 2 मरतबा हाई कोर्ट गया, और दोनों दफ़ा हाई कोर्ट ने मुतासरीन के हक़ में फ़ैसला किया। उसमें वाज़ेह लिखा है कि इनको ज़मीन भी दो, इनको मुआवजा भी दो, इनको दोबारा आबाद भी करो, और इनको नौकरियां भी दो, जो पहले मायदा हुआ था मोहतरमा के दौर में। उसके बाद 3-4 मायदे हमारे पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साथ हुए हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल है। सारे लोगों की दस्तखत उस पर मौजूद है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन पोर्ट कासिम अथॉरिटी इस चीज़ को मानती नहीं है। ये जो मोहम्मद खान गोठ है, जब 1981 में आखिरी सर्वे हुई थी कि पोर्ट कासिम में कितने गोठ आए, कितने लोग रहते, तो 592 लोग
जो ख़ानदान थे उस ज़माने में पोर्ट कासिम के अंदर रिहाइश पजीर थे, जिसमें ये गोट शामिल था। इनमें लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, लोगों के नाम भी लिखे हुए किन किन का घर है। लेकिन पोर्ट कासिम वाले कहते हैं कि ये नहीं, ये कब्ज़ा है। भाई कब्ज़ा है तो फिर 50 गोठों को, जो 27 गोट है उसको 50 एकड़ ज़मीन क्यों दी? फिर हाई कोर्ट ने वसंत गोट को 4 एकड़ ज़मीन क्यों दी? ये कानूनी लोग हैं और आज़ार है, आपके रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें। बहरहाल आजकल जो जिस तरह का मामला चल रहा है कि बड़ी रिश्वत, बड़ी बदमाशी के साथ इन्होंने गोठों पे कब्ज़ा करा, जिसमें मेन किरदार पोर्ट कासिम अथॉरिटी का है, रेवेन्यू लोग भी शामिल, और पुलिस का जो काम ही नहीं है, वो पुलिस इसमें बहुत इन्वॉल्व होके उन्होंने जिस तरह बेदर्दी के साथ लोगों को मारा है, पीटा है, औरतों की तजलील की है, चादर और चार दीवारी का तक्कदुस पामाल किया। मैं तो कहता हूँ कि इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पे खिलाफ वर्जी हुई है इस गोट के अंदर। कभी भी इस तरह नहीं होता कि पूरे गोट को मसमार करके आप उनको भगा दें और उस गोट पे कब्ज़ा करके बैठ जाए, उसकी माल मिल्कियत पे कब्ज़ा करके बैठ जाएं। भी आप ज़मीन पे तो कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारे सारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, लेकिन हमारे घरों पे, हमारे इज़्ज़तों पे, हमारे जो थोड़ी बहुत हमारे पास है जायदाद, जो सोने की शक्ल में, जो पैसों के शक्ल में, या हमारे घरेलू सामान के ज़िक्र में, वो किस कानून के तहत आप अपने कब्ज़े में रख रहे हो? एक चीज़ है कि ये पोर्ट कासिम के का मामला है, तो पोर्ट कासिम तो वफाकी हुकूमत में आता है, फिर रेवेन्यू और सिंध जो है वो तो पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के पास है। तो आपको लगता है कि दोनों हुकूमतों का गठजोड़ है इस मामले में? मैं दोनों को नाकाम समझता हूँ। दोनों गवर्नमेंट का गठजोड़ है। पोर्ट कासिम भी अमल नहीं कर रही है मायदों के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। अगर सिंध गवर्नमेंट करे तो रिकॉर्ड ज़मीन का सारा सिंध गवर्नमेंट के पास है, और सिंध गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने वो कापी जो हमें दी है वो उनको भी भेजी है, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को, और मैं खुद जाके उनसे मिला भी हूँ, उनको सारा बताया भी है, एप्लीकेशनें भी दी है कि भाई ये कोर्ट का फैसला इस पर अमल करो। लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी तौहीन अदालत कर रही है, वफाकी हुकूमत भी कर रही है, पोर्ट कासिम भी कर रही है। इस वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। मैं सिर्फ ये मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन का जो फैसला है, फिर हमारे दरमियान 2003 में जिसमें हमारे MNA शेर मोहम्मद बलोच, साजिद जोखियो, अब्दुल्ला मुराद शहीद, हम सब उस मीटिंग में शामिल थे, जो हमने रिटर्न में फैसले किए चीफ सेक्रेटरी के सामने, कलेबश रिंद के सामने हमने जो फैसले किए, उसी फैसले पर अमल चाहते हैं। अगर उसी फैसले पे अमल हो जाए कांगो कमीशन पर और हमारे फैसलों पर, जो हाई कोर्ट में हमने पिटीशनें की हैं उनमें जो जजमेंट आई है उस पर अमल किया जाए, तो कोई इसमें उबाम नहीं है, क्योंकि वो कानूनी हमारा राइट भी है और कोर्ट का फैसला है। लेकिन पोर्ट कासिम अथॉरिटी और रेवेन्यू दोनों मुजरिम है, दोनों ने इस मसले को आज तक हल नहीं करने की कोशिश नहीं की है। जी, इस वक्त हमारे साथ सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा एजाज सामटो साहब मौजूद हैं। वो यहाँ पर आए हैं और इन्होंने देहातों से मिले हैं, इनका मामला इन्होंने पूछा है, तो इनसे मालूमात लेते हैं। एजाज साहब, ये वो एक बार फिर कराची में जो जैसे हर आए दिन ये गोठों का मसला शुरू होता है, फिर ये दोबारा पोर्ट कासिम और इन गोठ वालों के मामला हो गया है, तो आप एक कौमपरस्त रहनुमा की हैसियत में क्या कहेंगे? देखिए, हम अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि गुज़िस्ता कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जिसकी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उनको सिंधियों का वजूद कराची में बर्दाश्त नहीं है। हमारे गाँव जो हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं है, हमारी रिहाइश उनको बर्दाश्त नहीं है, हमारी सियासत उनको बर्दाश्त नहीं है। हालांकि तारीखी तौर पे आप देखेंगे कि ये कराची के गाँव जो हैं, कराची के बुनियाद रखने वाले ये गाँव ही हैं। इनके ऊपर मुश्तमिल कराची शहर था, एक छोटा सा शहर था, और इन लोगों ने कराची शहर को आबाद किया। पर अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि ये तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी की सरकार का। उनको हमारी वारसी करनी चाहिए, उनको हमारी मालकी करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अख्तियार हैं। DC उनके मातहत है, असिस्टेंट कमिश्नर उनके मातहत है। जहाँ यहाँ के जो बोर्ड के वकीलों ने हमें बताया कि अफसोस से कहना पड़ा कि DSP की औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत क्या है। यहाँ पोर्ट कासिम का जो MD, उनकी कोई औकात नहीं है कि हमारे सालों सदियों पुराने गाँव उनको ऐसे मुसमार करे। उनके जो है अभी भी ये सारा सामान उनका उन्होंने बिल्कुल फुर्लट की है, डकैती की है, वहाँ लोगों का सामान उठाया, अभी भी उनकी मवेशियाँ वहाँ मौजूद हैं, और उन लोगों के ऊपर ATC के केस लगा के उनको खौफ में रखा है कि कोई उधर वापस नहीं आए। तो हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है। आज हमारा सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से इधर आने का एक ही मकसद है कि ये गाँव वाले वापस अपने मकानों में जाएँ, और इस गंदे अमल में जितने भी अफसरान मुलवस है उसको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारी वकीलों से बात हुई है, अभी वकीलों के पास हम जा रहे हैं, अब हम एहतजाज भी करेंगे, यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी करेंगे, और सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि ये इस अमल में जितने भी अफसरान मुलवस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये DSP, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इंक्रोचमेंट का जो ऑफिसर है, जिसने ये सारी कार्रवाई की है और उन्होंने पैसे लेके ये कार्रवाई की है, तो हम किसी भी सूरत में इनको माफ़ नहीं करेंगे। इनके साथ हर मोर्चे पे सियासी जदोजहद भी करेंगे और कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे। दूसरी बुनियादी बात ये
میں یہ کہتا ہوں کہ جو سندھ دشمن ہوتا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ اختیار دیتی ہے. اب علی زیدی کا کوئی تعلق نہیں ہے کراچی شہر سے. وہ خود اگر ان کی ہم جانچ پڑتال کریں گے وہ خود ایلیگل ہیں، وہ خود تارکین وطن ہیں. تارکین وطن ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قبضہ خور ہیں، یہ ان کے گاؤں جو ہیں یہ قبضے کے بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ زیادتی ہے. علی زیدی کو ان کے یہ باپ کا شہر نہیں ہے، یہ شہر سندھیوں کا ہے، یہ کراچی شہر. اب دیکھیں آپ کئی دنوں سے مسلسل ان کی خصوصی طور کے حکمران کی اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کہ سندھی عوام طیش میں آئے، یہاں نسلی فساد ہوں. تو یہ اردو بولنے والے جن کو ہم نے بھائی کہا، ہم نے اپنے وطن میں ان کو جگہ دی اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی کراچی شہر ہمارا، کراچی سے سندھو کا کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شہر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور مستقبل میں ہمارا شہر رہے گا. خدا را یہ نفرت والی باتیں نہیں کرو. اور اگر کوئی ابھی بھی سمجھتا ہے کہ ان کا اس وطن سے کوئی تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو اخلاق ان میں اگر تھوڑی بھی غیرت جرت ہوگی تو ہمارے وطن کو چھوڑ کے چلے جائیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں. باقی سندھی کسی صورت میں ہم بالکل سمجھتے ہیں کبھی ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یہ دیہات کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن سے، اپنے شہر سے اس کی مالکی کا جو ہاتھ ہے وہ ہم اٹھائیں گے. کسی بھی صورت میں ہم ان کے گاؤں والے کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ میڈیا کی توسط سے ان گاؤں والوں کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتے اور ان کرپٹ آفیسروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، سندھ یونائٹڈ پارٹی اس گاؤں والوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے گی. وہ جدوجہد اس وقت قائم رہے گی جب تک یہ واپس نہیں جاتے اور ان کرپٹ آفیسروں کو ان کو سزا نہیں ہوتی، وہ گرفتار نہیں ہوتے. کوٹ قاسم انتظامیہ نامنظور، کوٹ قاسم انتظامیہ نامنظور، کوٹ قاسم انتظامیہ نامنظور. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پورٹ قاسم کے ترجمان خلیل چانڈیو صاحب موجود ہیں. ان سے معلومات لیتے ہیں کہ محمد خان گبول جو گوٹ ہے اس کا کیا پس منظر ہے، کیا معاملات ہیں اور اس پر پورٹ قاسم کا کیا موقف ہے. کیونکہ متاثرین کا جو سارا الزام ہے وہ پورٹ قاسم پر ہے کہ پورٹ قاسم کی انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے گھروں کو مسمار کیا ہے اور ان کے گھروں کو جلایا ہے. تو جی خلیل صاحب، کیا موقف ہے آپ کا؟ پورٹ قاسم کا کیا کہنا ہے اس پر کہ اتنا قدیمی گوٹ جو ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، پورٹ قاسم اتھارٹی 1973 کے قانون کے تحت معرض وجود میں آیا تھا، اور اس قانون میں جب یہ قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا تو اس وقت یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھی کہ اس میں جتنے بھی گاؤں، قصبے، دیہات وغیرہ آ رہے تھے تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ان کو معاوضہ دے کے ان کو نعم البدل جگہ عطا کی جائے گی، فراہم کی جائے گی، اور اس کے فراہم کرنے کے بعد یہ جتنے بھی متاثرین ہوں گے وہ خود بخود اپنے اس پروپوز جگہ پہ چلے جائیں گے. بعد میں ایک کانگو کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بنی جس نے یہ طے کیا، جس نے سارے گوٹھوں کا سروے کیا اور یہ طے کیا کہ یہ اتنے گوٹ اس میں آ رہے ہیں، اس کو ہم اپنے جو ہے اتنا معاوضہ بھی دے رہے ہیں. اور وہ معاوضہ پورٹ قاسم اتھارٹی نے انہی دنوں میں، مقصد یہ کہ یہ 73 کے بعد جو ہے کوئی 78-80 کے دوران جو ہے وہ ساری پیمنٹ جو ہے پورٹ قاسم نے ڈی سی آفس میں جمع کرا دی، کیونکہ ڈی سی کا کردار ثالثی کا کردار تھا. نہیں، وہ پیمنٹ کانگو کمیشن کے تحت طے ہوا تھا. کانگو کمیشن وہ تو خیر بے نظیر کے دور میں نا، پھر تو وہ 88 کے بعد بنا تھا. نہیں، یہ کانگو کمیشن بے نظیر صاحبہ سے پہلے کی بنی ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو پورٹ قاسم تو 73 سے معرض وجود میں آیا تھا. تو اس کے بعد یہ ڈی سی کے پاس پیمنٹ پڑی، ان کو متبادل ہم نے زمین فراہم کی جو غگر فاٹک کے پاس قریب ایک جو ہے کوئی 100-125 ایکڑ ہم نے زمین دے دی، اور جتنے بھی متاثرین تھے ان کے پرسن کے حساب سے ہم نے ان کو 120 گز کا گھر الاٹ کیا اور وہ وہاں پہ آباد بھی ہوئے، شفٹ بھی ہوئے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ اپنے مکانات، اپنے گاؤں چھوڑ نہیں پا رہے. مقصد یہ کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑنا، اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے ڈی سی آفس سے اپنی کمپنسیشن جو معاوضہ ہے وہ لے لے. لہذا اسی وجہ سے یہ بلا وجہ گاؤں والے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ پورٹ قاسم اتھارٹی جیسے یہ زمین جو ہوتی ہے وہ ہم صنعت کاروں کو الاٹ کرتے ہیں، ملکی مفادات میں جو نیشنل امپارٹنس کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس انڈسٹری کو جو ہے پروموٹ پورٹ قاسم کرتا ہے کہ پورٹ اورینٹڈ جتنی بھی بزنس ہوتی ہے، پورٹ اورینٹڈ جتنی بھی
इंडस्ट्री होती है, हमने ये ज़मीन उनको अलाट की हुई है। ये एक अलाटी था जिसकी ज़मीन पे इनका कब्ज़ा था, या ये अलाटेड ज़मीन थी जिसके ऊपर ये गाँव बना हुआ था। तो लिहाजा अब अलाटी ने भी कोशिश की, उसने कई बार उनसे खुद बात करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ उनको पेशकश की, मुआवजा देने की कोशिश की, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। तो लिहाजा हुकूमत वक्त के साथ या पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन डीसी ऑफिस और मुतासरा शख्स जिसकी ज़मीन अलाटमेंट है, उसने ये सारी जो है कार्रवाई करवाई है। लिहाजा पोर्ट कासिम एक सालसी के तौर पे एक जो है, ये कैसे हो सकता है कि एक अलाटरी हो, उसके कहने पर पुलिस भी आ जाएगी और ये इतने सारे इंतज़ामिया आ जाएगी कि वो अपनी मर्ज़ी से आकर पोर्ट कासिम, हदूद तो पोर्ट कासिम की ही है ना, वहाँ अंदर आकर आग लगा देगा, अंदर आकर बुलडोज़ कर देगा। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि पोर्ट कासिम को, इंतज़ामिया को पता ही ना हो। ये तो बिल्कुल आप कवर कर रहे हैं उनको, लेकिन ये वैसे हो नहीं सकता क्योंकि उनकी मंशा, मर्ज़ी के बगैर तो कोई अंदर परिंदा नहीं आ सकता, तो बुलडोज़र कैसे आ गए? देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी का इसमें कंसेंट ज़रूर शामिल था। हमने ज़रूर जो है डीसी ऑफिस को या असिस्टेंट कमिश्नर को खतूत लिखे होंगे, पुलिस को लिखे लिखे थे कि भाई ये कब्ज़ा हुआ है, आप क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जितना भी है वो आपके पास है, ये आपकी जुरिडिक्शन है, तो आप आए इन चीज़ों को देखें, जो भी कानूनी तौर पे इस चीज़ का मुतबादल या जो भी तरीक़ेकार हो सकता है वो आप देखें। तो उन्होंने ये कार्रवाई की, पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने जस्ट अपनी ज़मीन पे कब्ज़े की इंटीमेशन दी, इन्फॉर्मेशन दी डीसी ऑफिस को, पुलिस अथॉरिटीज़ को, और ये ज़रूर कहा कि भाई आप आएँ, ये इनक्रोचमेंट हमें ख़त्म करा के दें, जो भी तरीके का मुरवज तरीक़ेकार है। तो लिहाजा ये उनका एक्शन है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी का इसमें कोई भी जो है वो किरदार नहीं है। देखिए ना, आपने अगर लिखा भी होगा, अगर लिखा है आपने पुलिस को और डीसी को, बल्कि आप पुलिस को लिख नहीं सकते ना, आप तो डीसी को लिखेंगे ना। पुलिस का काम तब होता है जब जाकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, अदरवाइज तो वो आकर घर मसमार नहीं करती, ना खुद खड़े होकर कब्जा हटवाती। ये पुलिस का भी काम नहीं। पुलिस ने इतनी इलीगल कार्रवाई की और फिर यही वजह थी कि पुलिस ने तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार किया उनको छोड़ा, पुलिस ने एफआईआर भी हुई तो वो उसको भी अब ख़त्म कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि जब आप मानते हैं कि ये कदीमी यहाँ रहने वाले हैं, मकीन हैं वहाँ पर, तो अगर उन्होंने अभी तक मुआवज़ा नहीं लिया, तो उसका मतलब ये तो आप डिनाय नहीं करेंगे ना कि वो वारिस नहीं है इस गाँव के, या वो मालिक नहीं है, या मकीन नहीं है। अब देखिए ज़ोहैब साहब, बात ये है कि जो कांगो कमीशन में तय हुआ था, पोर्ट कासिम ने शक बशक उसकी पासदारी करते हुए वो सारी पेमेंट भी जमा करा दी और इनको मुतबादल रहने के लिए अपने जगह और प्लाट भी फराहम किए। तो लिहाजा ये अभी इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी उस जगह पे चले जाएँ जो चीज़ें कांगो कमीशन ने तय की थी। जो चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, अगर ये खुदा न खास्ता बज़िद है, तो आप बताएँ कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास क्या रास्ता रह जाता है कि वो किसी न किसी और लोगों से कहे, डीसी ऑफिस को कहे, किसी और अथॉरिटीज़ को कहे कि भाई ये हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा है, आप काइंडली हमें खाली करवा के दें। तो ये हमारा हक बनता है जो हमने किया है। अच्छा, उसके साथ-साथ ये भी कि वो गाँव वालों से भी मेरी बात हुई है, जो उनमें से जो ज़ख्मी हुए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उनका कहना है कि कोई हम उनके भी यही मुतालबात है कि हमें मुआवज़ा दिया जाए, हमें मुतबादल जगह दी जाए, हमें घर दिया जाए। और जो वो यही चीज़ आपकी कांगो कमीशन में तय हुई और उसमें ये तय हुआ था कि लैंड और कंपनसेट जो है वो करेगा पोर्ट कासिम, और वहाँ पर जो हाउसिंग होगी वो सिंध गवर्नमेंट बना के देगी, जो चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी आज भी उनका ये मुतालबा, जब मेरी बात हुई तो उनका ना हमें मुआवज़ा दिया जा रहा है, ना हमें प्लॉट दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। तो ये फिर हम किस की बात को दुरुस्त समझें कि आप दे रहे हैं, वो नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं हमें दे ही नहीं रहे, हमें दे दें, हम ये मामला ख़त्म करके चले जाएँगे। देखिए, मैं वाज़ेह तौर पे ये आपको बता देता हूँ कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने जो जितनी भी रकूम बनती थी, वो डीसी ऑफिस, क्योंकि डीसी का उस वक़्त का किरदार जो था एक सालिस का किरदार था और ये कमीशन ने तय किया था और ये कमीशन कोई हाई-फ़ाई कमीशन थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के कहने पे, उस वक़्त के कहने पे ये कमीशन बनी थी। तो वो सालिस के तौर पे हमारे ऊपर, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के ऊपर जितनी रकम बनती थी, वो रकम हमने उनके अकाउंट में जमा करा दी है, जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल मौजूद है। इसके अलावा जो मुतबादल ज़मीन हमने फ़राहम करनी थी, वो भी हमने फ़राहम की और उसमें तो लोग रह रहे हैं। वो तो एक बहुत बड़ी, माशाअल्लाह, गगर फाटक के करीब आप देखें, बहुत बड़ी कॉलोनी बन चुकी है। तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, हज़ारों की तादाद में रह रहे हैं। तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने अपने तौर पे कोई ऐसी कोताही नहीं की जिसके लिए पोर्ट कासिम को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए। पोर्ट कासिम ने अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल किए, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे। न सिर्फ इनको इनको कई बार हमने नोटिस दिए कि भाई आप ये वेकेट करें, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट ने ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की एक टेरिटरी है, उसकी ज़मीन पे अगर आप इस तरह कब्ज़ा करके बैठे रहेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा वो बार बार कोशिशों के बावजूद
बावजूद वो बाज नहीं आ रहे थे, तो बिल आखिर हमने मजबूर होके जो सिंध गवर्नमेंट थे, DC ऑफिस थे और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थे, हमने उनको खतूत लिखे और खतूत के बुनियाद पे जो है ये ऑपरेशन हुआ, ये कार्रवाई हुई। और मैं ये समझता हूँ कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी हक बजानिब है, वो अपनी चीज़ों पे, अपनी बातों पे कायम रहे। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ ये है कि ज़ाहिर है अब ये इन्होंने इलाका मक्किन या जिनको आपने बेदखल किया है, उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान किया है और वो उसी तरह एक एहतजाज के लिए मोमेंटम बना रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहरिया टाउन वाला इशू बना था कि वहाँ पर भी लोगों को अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा था, उनके गोठों को मसमार किया जाता, और फिर पोर्ट कासिम ने भी वही रवायत शुरू कर दी है। तो फिर क्या नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जिस तरह एक बहरिया टाउन ने एक एहतजाज को रेजिस्ट को फेस किया था, आपकी अथॉरिटी भी कर ले? देखिए, हम इस बात पे तो ये क़ब्ल अज़ वक़्त होगा कि इस पे हम जो है इस बात का जो है वो जवाब दें। लेकिन ये है कि आप देखें कि इस वक़्त मुल्क की हालात ये हैं कि हमारा मुल्क जो है दुनिया पूरी जो है कमज़ोर माशी सूरत हाल से निमट रही है। आपके पास सिर्फ़ 2-3 इदारे ही बचे हैं जो आपको कमा के दे रहे हैं और मुल्क का एक सहारा बने हुए, उसमें पोर्ट कासिम का एक अहम किरदार है। अगर पोर्ट कासिम के खिलाफ इस तरह के एहतजाजात होंगे, लाज़िम है कि हमारा बिज़नेस मुतासर होगा, इंडस्ट्रीज़ मुतासर होगी और मुल्क की मईशत को जो है नुकसान पहुँचेगा। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की जो है कोई एक्टिविटीज़ हो जिससे जो है मुल्क को नुकसान पहुँचे। दूसरी बात ये है कि देखो, हमारे पार्ट पे हमने अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन, इससे आगे भी मज़ीद भी अगर कोई किरदार हमारे ज़िम्मे बनता है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी ज़रूर वो किरदार निभाएगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी। हम अभी भी इस वक्त अपने गाँव वालों के साथ, अपने मुकामी आबादी के साथ साथ हैं। हम उनके दुख दर्द में उनके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि वो आज भी आएँ, वो अपनी ज़मीन ले लें, अपना घर बनाएँ, अपनी जो कंपनसेशन जो उनकी पेमेंट पड़ी हुई है DC ऑफिस में वो ले लें और वो अपनी आबादकारी शुरू करें। अपनी बच्चों के एजुकेशन के लिए वो आगे आएँ, वो अपने बच्चों की नौकरियों के लिए आगे आएँ। हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। पोर्ट कासिम इंतजामिया ना मंजूर, पोर्ट कासिम इंतजामिया ना मंजूर, पोर्ट कासिम इंतजामिया ना मंजूर। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया मोहम्मद खान गबोल गोट जिसको पोर्ट कासिम की जानिब से मसमार किया गया, और इस गोट के हवाले से आपने ये भी जाना कि यहाँ पर जो इलाका मकीन थे जिनको यहाँ से बेदखल किया गया, उनके घरों को मसमार किया गया, तो उनका मौक़िफ़ आपके सामने हमने रखा और उन्होंने अपनी बात रखी। जबकि यहाँ के जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी और उसके साथ साथ पोर्ट कासिम अथॉरिटी के तर्जुमान की गुफ्तगू भी आपने सुनी। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि हज़ारों साल पुरानी ये जो सरज़मीन है, यहाँ पर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का ये असूल है कि जो इलाका मकीन होता है, जो सन ऑफ सॉइल होता है, उसका पहला हक़ अपनी ज़मीन पर होता है। तो यहाँ पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी को इतना अरसा नहीं हुआ बने हुए जितना अरसा इन लोगों को यहाँ पर आबाद हुए हुआ है। और जबकि ये हुकूमत के दरमियान, पोर्ट कासिम के दरमियान और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान ये तय हो चुका था कि इन लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं इनको 1-1 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान दिया जाएगा, और फिर इनको पोर्ट कासिम की जानिब से प्लाट भी दिए जाएंगे, और फिर वहाँ पर सिंध हुकूमत इनको घर तामीर करके देगी। लेकिन ये इस पर एक भी मुतालबे पर अमल नहीं हुआ, बल्कि उनको ज़बरदस्ती पुलिस की मदद से उनके घरों को जलाकर, उनके घरों को मसमार करके उनको बेदखल कर दिया गया है। वो सरापा एहतजाज है। और यहाँ पर बड़ी हैरत की बात जो नज़र आती है वो ये है कि पुलिस का काम नहीं है कि वो कोई इंक्रोचमेंट हटाए, पुलिस का काम नहीं है। अगर एक लम्हे के लिए हम मान भी लें कि ये लोग यहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे थे, तो भी पुलिस का ये काम नहीं है कि वो आकर लोगों के घरों को मसमार करे, क्योंकि ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ये बताना चाहिए कि आखिर उसको किसने ये हक़ दिया कि वो इस तरह मसमार करे। ख़ुद पोर्ट कासिम अथॉरिटी का भी इस हवाले से कोई इतना अख्तियार नहीं है कि वो अपने फ़ैसले करते फिरे। और उसके साथ इन लोगों के हक़ में, इन मोहम्मद खान गबोल गांव के लोगों के हक़ में हाई कोर्ट ने 2 बार फ़ैसला दिया है और पोर्ट कासिम को कहा है कि आप इनको मुआवजा दें, लेकिन पोर्ट कासिम अथॉरिटी उस पर अमल नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, और पूरे कराची में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि कब्ज़ा माफिया के कहने पर कुछ लोगों के इमा पर इस तरह गोठों को मसमार किया जाता है, और जो यहाँ पर कई सालों से आबाद हैं लोग, उनको बेघर कर दिया जाता है। तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी इस हवाले से और
सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसमें सोचना चाहिए कि बिल्कुल कांगो कमीशन के तहत जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, इन लोगों को प्लाट दिए जाएँ और सिंध हुकूमत इनको घर बना कर दे। अदरवाइज़ अगर नहीं होता तो ये मामला और भी आगे बढ़ेगा। जिस तरह इन मकीनों ने और बाकी सियासी समाजी शख्सियतों ने जो एहतजाज किया, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो एहतजाज तहरीक चलाएंगे पोर्ट कासिम के ख़िलाफ़, तो ये मामला आगे जो है वो बढ़ सकता है। फिलहाल देखें कि ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। फ़िलहाल तमाम इलाका मकीनों को, इन गाँव के जो मकीनों को पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने यहाँ से बेदखल कर दिया है, उनके घर जला दिए गए हैं। आप धुआं मेरे कम में देख सकते हैं, अभी तक उठ रहा है। उनके घरों को बिल्डोज कर दिया गया है। फ़िलहाल तो ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने जो है वो सबकत तो ले लिए, लेकिन ये मामला वैसे रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।